बात तो वही है। Okay, good morning, class. Good morning, sir. So in the last lecture, we have done with something which was related to the switch case. So in today's class, what we do is we will extend the criteria. We will move to something else which is more productive as per the switch case is concerned. So let us see how we can make them those things. Let me join my writing pad so that I can explain first and then we will move to the coding part. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thanks for input. So let me share the screen first. सर नॉइस आ रही है कोई माइक से। हाँ कोई नहीं, वो ठीक कर रहा हूँ मैं, उसी को ठीक करने लगा हूँ क्योंकि वो आवाज कुछ ज़्यादा ही भयानक आ रही है। I restarted the thing. Okay. So I believe now my screen is also visible to you, and I am also visible to you most probably. If not, let me open the camera now. Now I should be visible. Fine. So let us have the notebook. USB camera. Okay, that is the reason. So here is the page where we will be learning about the next topic. Switch case. Using switch case again, we'll make use of switch case in a different way now. Let us have a small program which will be used for secret writing. Right? So let us have a small program which is used for secret writing. So now what I understand by secret writing, basically it is a concept which is called cryptography. Fine, cryptography. So crypto means to hidden or hide, and graphy means writing. So if you will hide your writings means basically does not mean it is actually handwritten. Writing means whatever you type, suppose.
So let us have a small crypto machine or crypto program that actually encrypts the text. Fine. So पहले जरा समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ताकि हम इसको करके देख सके, कंप्यूटर पे लगाने की कोशिश करें. ठीक है, तो समझते हैं जरा. सबसे पहले तो हमने देखा कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, छोटे वाले जो लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स, वो हैं A to Z, and it starts from the ASCII code 97. याद आ गया होगा. And capital letters, these are again from A to Z, and it starts from 60. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. Now, what is the status? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Thanks for the inputs. And let us check up the screen visibility now because अब मुझे screen दोबारा share करनी पड़ेगी. Let me share it again. Okay. So here it goes. Thanks, Abhishek. So, is the screen also now visible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. Yes, So sir. let us repeat the things so that we can move to the program then. Firstly, the thing is that we are talking of what do you understand by secret writing. We will write a code now which will do secret writing for us. Now, what is secret writing? Basically, it is a branch of computer science which deals with this part, which is called cryptography. Crypto means hidden, and graphy means writing. So, if you hide your writing, if you encrypt, if you change what was actually input by the user to something else,
एंड इफ समबडी वांट्स यू कैन रिवर्ट इट बैक आल्सो। तुम उसे छुपा भी सकते हो जो जानकारी थी, और उसको वापस बदल के वो बना भी सकते हो जो एक्चुअल में थी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो जब हम इसे छुपाते हैं तो इसे बोलते हैं इनक्रिप्ट करना, जब हम इसे वापस लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं हम डीक्रिप्ट करना। ठीक है, क्रिप्ट का मतलब राइटिंग को छुपाना है, और डीक्रिप्ट का मतलब क्या है, उसे वापस रिकवर कर लेना। तो हम लोग जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे दैट इज दी ASCII codes. Fine. So we have understood ASCII codes in C language. We know that small letters from A to Z, they are having ASCII code from 97 to the ASCII code of Z. Now 97 is actually the ASCII code for A, and we can move up to 26 places to reach the ASCII code of Z. In the same way, capital letters from A to Z, if you are having some text and you want to hide it, so you should know the ASCII code of capital A. And what is the ASCII code of capital A? Capital A is 65, and Z, for Z we do not know. Suppose I do not know what is the ASCII code of Z, but I can manage that one also. किसी तरीके से देखेंगे. Now in the same way, the ASCII code of a number 0, digit 0 is 48, and up to 9 you have to go. So this means up to 57 you will be having the numbers. Fine. So we can have the ASCII codes of these characters, and we can start encrypting the things. We can start our project of hiding our text. So let us see how we will be able to do this thing. देखें जरा कैसे करेंगे. थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So let us see how we will be doing it. तो देखिए जब भी हम कोई भी कुछ भी लिखते हैं, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अब मैं इस सेंटेंस को चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं छुपाना चाहता हूँ, इसको मैं सीक्रेट कोड में बदलना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ मैं समझ पाऊं और वो समझ पाए जिस पे ये कोड होगा, जिसको ये मालूम होगा कि इसको वापस कैसे लाना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हम कहते हैं कि जो हमारे लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स, सपोज A B C D E एंड सो ऑन है, अप टू Z है, तो हम हर A को C बना देंगे। मतलब जहां जहां A आएगा उसको मैं C लिखूंगा, जहां B आएगा वहां मैं D लिख दूंगा, जहां C आएगा वहां मैं E लिख दूंगा, एंड सो ऑन। इज इट ओके? कैन वी डू इट? Yes, sir. या हम आसान कर रहे हैं अगर, तो मैं A को मान लो B बना देता हूँ, B को मैं C बना देता हूँ, C को D बना देता हूँ। दिस विल बी इजी। तो पहले इसको कर लेते हैं ऐसे, A को B बना दिया, B को C को D एंड सो ऑन। तो आप देखो जरा, अब अगर हम स्मॉल में भी यही करते हैं और कैपिटल में भी यही कर देते हैं, कैपिटल A को मैं कैपिटल B लिख दूंगा, कैपिटल B को मैं कैपिटल C लिखूंगा, कैपिटल C को कैपिटल D लिखूंगा, एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बताएंगे जरा ये क्या बनेगा, T की बजाय क्या आएगा? सर कैपिटल U। वेरी गुड, कैपिटल U, बहुत अच्छे। स्मॉल h की जगह आएगा क्या हमारे हिसाब से? I. I। और I की जगह J. J, और S की जगह T। तो कोई माइकल लाल ये नहीं जान सकता कि इसका मतलब दिस था। क्लियर है ना? इज की जगह क्या आ रहा है फिर? अब I की जगह आ रहा है फिर से J, और S की जगह आ रहा है T। A की जगह वी आर राइटिंग B, है ना? सेंटेंस की जगह बता देना मैं अगर गलत करूं तो। Is it clear? So this will be my secret sentence. इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? It's called encryption. Encryption. और अगर हमें इसे वापस लाना हो तो we will say it is decryption। और डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या आएगा? U की जगह वापस जाएंगे, पीछे जाएंगे अब, तो आएगा T, फिर H, फिर IS। वो तो आपको मालूम है, ओरिजिनल जो था वही लाने की कोशिश हम करेंगे। So let us see how we can code this thing in our Turbo C environment. So let us move to the Turbo environment now.
Are you finding this an interesting program to code now? Yes, sir. Okay, thanks for your input, but the yes was not so energetic to assume that yes, you are actually enthusiastic to learn this code. Yes, यस sir. भी ऐसा होना चाहिए था, पता लग जाता कि हाँ भाई जान बढ़िया से मजा आ ही रहा होगा शायद है। अच्छा एक चीज और देखना, मैं आपसे पहले बोल देता हूँ कि जनरली इट इज एज्यूम्ड कि जो एमएससी वाले हैं ना ये कंप्यूटर इतने अच्छे से नहीं जानते और ये नहीं करना भी नहीं चाहते। तो अगर आपकी सच में यही मंशा रहती है, एमएससी वाले जो हैं, जो उनकी जो इमेज बनी हुई है वो ये कि एमएससी वाले कम पढ़ते हैं या कम पढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोग्राम्स। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे सीक्रेटली आप मुझे कन्वे कर देना, ठीक है? तो आई विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वी आर जनरेटिंग इन द क्लासेस और लैब्स, अगर तुम्हें लगे तो, ठीक है? अगर लगता है कि नहीं नहीं हमें तो करना है, हम सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आप पब्लिकली बता सकते हैं कि नहीं हम सर कर रहे हैं और हम वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू एंड बेटर प्रोग्राम्स, और तो उस हिसाब से फिर मैं और करना चाहूंगा। अगर आप कम सीखना चाहते हैं तो मैं कम सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगेगा वी विल डू दिस थिंग for all of you. Now you see, now how we will be moving to this one is that I've made a line as an array of 80 characters. So what we will do is we will be reading the line, right? So to read the line, I write the small printf statement and say enter a line, the sentence or line to encode, fine? And here I am having /n, suppose. And what we should do, याद आ गया? मैंने कहा था कि जब भी आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं या स्ट्रिंग पढ़ना है तो try to use getS rather than scanf. Now you have the line. Now I want to know the actual length of our line. Now whenever you say read something by getS, तो getS में जो है वो क्या है कि जब आप एंटर लगाओगे तो वो रीड कर लेगा, और हम चाह रहे हैं कि एक लाइन ही पढ़े ज्यादा, तो इसलिए हमने 80 कैरेक्टर दिए उसको कि आप 80 कैरेक्टर तक पढ़ सकते हो, ठीक है? एक लाइन में सी में 80 कैरेक्टर्स माने जाते हैं। सो वी हैव दिस getS with us and we will try to read the line now. Now once you have read this line, now I want to convert this line into my secret code. अब हम इसे secret code में बदलना चाह रहे हैं, तो हम वो कैसे करना चाहेंगे? तो देखिए जरा, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। we'll have a for loop, suppose, and we start with count is equal to 0, and let us have count which is less than something no. तब तक आगे चलते रहेंगे जब तक जो है लाइन के काउंट पे पड़ा हुआ वैल्यू नॉट इक्वल टू है, इसको समझाता हूं अभी मैं आपको। नॉट इक्वल टू है एक नल कैरेक्टर के, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस नल कैरेक्टर। तो इसको जरा मैं एक बार समझा दूं आपको थियोरी पार्ट में। नाउ व्हेनेवर यू टेक एनी स्ट्रिंग इन सी, जैसे हमने ये लिख दिया ना दिस इज अ सेंटेंस, तो जब हम सी में ये लिखते हैं, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया सी में सुखविंदर, ठीक है? तो अगर मैं ये लिखता हूँ डबल कोट्स में डाल के और किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ नेम में, तो बेसिकली नेम के 0 इंडेक्स पर पड़ा होगा एस, सिंगल कैरेक्टर एस, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा यू, ठीक है? सेकंड इंडेक्स पे पड़ा होगा के, एंड सो ऑन। और जब आर आएगा, आर कहाँ आएगा? 9th इंडेक्स पे आ जाएगा सीधा, ठीक है? उसके बाद क्या है? आखिरी कैरेक्टर जो है वो 10th इंडेक्स पर एक पड़ा होगा, दिस कॉल्ड नल कैरेक्टर। दिस यू कैन रीड एज नल कैरेक्टर, ठीक है? इट हैज टू बी द लास्ट कैरेक्टर इन एवरी स्ट्रिंग। जब भी स्ट्रिंग को स्टोर करता है सी, तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर अपनी तरफ से अपेंड कर देता है। हाँ, थैंक यू।
तो नल कैरेक्टर इसके लास्ट में अपेंड कर देता है, तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम कह रहे हैं कि जब तक रीड करते रहना, Excuse me, देखिए sir. मैंने क्या किया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Sir, repeat करना null character. मेरे में श्योर नेटवर्क श्योर इशू श्योर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 1 मिनट में रिपीट कर रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू, whenever we store a string in C, then what happens? Suppose we have a string Sukhvinder, my name is there, and I want to store it in a variable which is called name, and it has been earlier declared as a character array, suppose. तो अब अगर मैंने इसको सुखविंदर जो नाम है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ वैल्यू गिवन टू द स्ट्रिंग. So if I have given some value to the string, then what will happen? The name of the string and the zero index. Now zero index will have the first character of the string, which is S, suppose here. Now you increase one by one the index numbers, and you will store the characters one by one in all these index values. तो इसका मतलब हुआ, देखो मैं यहां लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो 9 पर ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, आर आएगा. ये मैंने देखिए ये लिखा ही है कि नेम के 9th इंडेक्स पर आर स्टोर होगा. बट द मोमेंट द स्ट्रिंग इज ओवर, सी बाय डिफॉल्ट places or appends a new character which is called null character. This character at the end of the string. जब भी हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो सी इस कैरेक्टर को, नल कैरेक्टर को स्टोर कर देती है. कहां पर स्टोर कर देती है? एट द लास्ट इंडेक्स. जो आपने लास्ट इंडेक्स लिया जिसमें आखिरी कैरेक्टर आ गया, उससे जस्ट अगले कैरेक्टर पे, अगले इंडेक्स पे आपको नल वैल्यू डालकर सी जो है वो स्टोर करती है, ऐसे स्टोर करती है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. एरे के साथ मैच करें कि हर इंडेक्स पर एक एक करके कैरेक्टर पड़ा हुआ है. अगर स्ट्रिंग को हम एरे मान लें, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो एक एक कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स पर डालते चले जाएंगे और आखिरी इंडेक्स के बाद नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर नल वैल्यू को डालेगी. कौन डालेगी? टर्बो सी एनवायरनमेंट जो है वो खुद डाल देगी, आपको नहीं डालना. ठीक है, तो ये जानकारी जो हमें पता लगी, हम इसका फायदा यहां उठा रहे हैं कोड में. देखिए आप, हम कह रहे हैं कि इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे क्योंकि सी के अंदर इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और हमने कहा लाइन के उस इंडेक्स पर, मतलब ये जो बीच वाली कंडीशन है वो क्या होती है, कब तक चेकिंग होगी, ये टेस्ट कंडीशन है हमारी. तो हमने कहा लाइन के उस इंडेक्स पर जब तक नल ना आए, नल नहीं आए, है ना, तो इसका मतलब है जब तक हमारा काउंट का जो इंडेक्स है वो ना पहुंच जाए जितने हमने लाइन डाली थी, जो लाइन हमने रीड करवाई होगी यूजर से, उससे जब अगला इंडेक्स आएगा तभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगी. तो हम ये कह रहे हैं तब तक चलाते रहना फॉर लूप जब तक नल वैल्यू ना हो. तो जब तक नल वैल्यू नहीं आती तब तक हम ये चलाना चाह रहे हैं, चलाते चाह रहे हैं. तो क्या होगा ये देखिए अब आप, और ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है. तो इंडेक्स एक एक करके बढ़ाता जा रहा है. हमें एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पढ़ने और उसके बेस पर एक डिसीजन लेना था. डिसीजन क्या लेना था, याद करिए. हमने कहना है कि we will read the index value. So what we have is we have a range of values. तो मैंने कहना है कि अगर if जो है line count वाला जो है is greater than or equal to 65 and लाइन का जो काउंट में जो भी आपको मिल रहा है, मतलब ये जो कैरेक्टर मिल रहा है, अगर वो लेस देन है कितना, ओहो 65 का मतलब हुआ कैपिटल ए, है ना, और कैपिटल ए में 26 जोड़ोगे, 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैरेक्टर कौन सा आएगा आप बताएंगे जरा, क्या वैल्यू आएगी? 65 प्लस 26. यस एनीवन? 91. 65 plus 26 is 91, so I say 90. लेसन, क्योंकि क्या होगा देखो, गिनती क्योंकि 26 से शुरू हो रही है ना, सॉरी 65 से शुरू हो रही है और 26 कैरेक्टर हैं, तो आखिरी कैरेक्टर का Z का जो कोड है वो 90 ही होगा. पर अगर आप Z को भी एक आगे बढ़ाओगे तो 91 बन जाएगा, और 91 जो है वो कैपिटल लेटर्स नहीं है. तो इसका मतलब हमने जानबूझ के यहां लिया कि
अगर आपके जो काउंट है वो 90 तक का है, 90 से छोटा है, तो आप क्या करोगे? तो हमने कहा हम क्या करेंगे, लाइन, ध्यान से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, लाइन काउंट इज इक्वल टू लाइन काउंट प्लस 1। बड़ा सिंपल काम कर दिया हमने। देखिए हमने क्या किया है कि हमने कहा कि जो कैरेक्टर होगा, अगर वो बड़े लेटर्स हैं, सारे कैपिटल लेटर्स अगर आपने डाले हैं, तो कैपिटल लेटर्स की रेंज है ये वाली 65 से लेके 90 तक आएंगे। तो हमने कहा कि अगर कैरेक्टर जो है वो बड़ा वाला कैरेक्टर है, तो क्या करो, ये कर दो, क्या करो, लाइन काउंट में क्या डाल दो, लाइन काउंट प्लस 1 करके डाल दो, है ना। तो जो भी कैरेक्टर है उससे अगले कैरेक्टर की वैल्यू उसमें डाल दो, ये हमने कह दिया उसको, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट भी हो इफ में, आप हमेशा ब्रेस का इस्तेमाल जरूर करें, जरूर करें, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम जो है बाद में कोई लाइन ऐड करते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम आती है और पता नहीं लगता हमें फिर उसका। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ z के लिए एक स्पेशल केस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ कहना है कि अगर 90 आ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं इफ देखिए जरा आप ध्यान से, इफ लाइन का जो पड़ा हुआ कैरेक्टर है इक्वल्स 90, अगर वो 90 है तो क्या करेंगे, उसे लाइन के काउंट को हम a बना देते हैं, हम उससे आगे चले गए, ठीक है। ABCD EFG है, जब लास्ट में आया Z XYZ, Z के बाद फिर से ABCD EFG, तो इस तरह मान के चल रहे हैं हम, एक आगे करेंगे तो ZA बन जाएगा, है ना। और जब हमें अगर वापस ही में अगर हमें A मिलेगा तो हम उसे वापस Z में बदलेंगे। तो अभी मैंने इतना ही करा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो हम लिख रहे हैं क्या इससे काम बन जाएगा। लेट अस हैव, तो इसको चला के देखते हैं हल्का सा, अगर हम कामयाब होते हैं तो हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आगे काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेटस करा हुआ था, एक बार मैं आपको टेस्ट पहले कर देता हूँ, ताकि जो लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन थी वो हमें तो पता ही है वैसे तो, बट कंप्यूटर ने जो रीड किया वो हमें पता लग जाएगा पुटेस्ट लगा के। और यहाँ पे हमने लाइन बदल दी है, ये जो फॉर लूप लगाया है हमने, इसमें ये लाइन बदल दी है हमने, पर हम फिर लास्ट में पुटेस्ट लगा के देख रहे हैं, पुट स्ट्रिंग लगा के देख रहे हैं एक तरह से कि क्या हमने जो सोचा था कोड करेंगे क्या वो हो गया। और इसमें ध्यान रखिएगा जब हम इसे चलाएंगे, अब हम उसमें हम केवल कैपिटल लेटर्स ही डालेंगे, क्योंकि हमने 65 जो डाला है दैट इज ASCII कोड फॉर द कैपिटल कैरेक्टर, कैपिटल ABCD, फाइन। So let me execute this code. I try to run this code now. Of course, there will be some errors related to declarations, और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हमने प्रोग्राम याद नहीं कर रखे होते, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, सिर्फ ये declaration करना है हमें, and we are done with this thing. Fine. So let us try to execute the code now. No? पहले एक बार मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है कि प्रोग्राम गायब ही हो जाता है फिर उसके बाद। ये लिखते हैं इसे हम script code1.c, ओके। सो आई हैव सेव्ड इट नाउ, अब मुझे कोई डर नहीं है इसका। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के अपना नाम ही लिख के दिखा रहा हूँ आपको, क्या आप देख पा रहे हो जो नाम मैंने लिखा है। और जैसे मैं अभी एंटर लगाऊंगा फिर उसके बाद हमारा कोड चलेगा। लेट अस सी, अगर ठीक काम करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं काम करेगा तो उसे हम ट्रबल शूट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। लेट अस सी नाउ, ओके, आई हैव रन। तो इसको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ Alt F5 करके, एंड यू सी हियर इट्स वंडरफुली एनक्रिप्टेड। क्या आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आखिरी लाइन है? Yes, sir. Yes, sir. So this means that our code is wonderfully working. अच्छा, एक चीज और है, जब हम ऐसे काम करें तो एक बार ये काम जरूर करें कि जिस केस के लिए आपने स्पेशल लगाया काम जेड के लिए, उसका क्या हो रहा है। तो लेट मी एग्जीक्यूट इट वंस अगेन टू चेक कि अगर मैं ZZ डालता कहीं पे तो उसका क्या बनता। तो ये देखिए,
It is working. Okay, fine, working fine है, ठीक है. Now you see, now it is. अब जब देखो मेरी एनर्जी भी कितनी ज्यादा तेज हो गई है. तो हम क्या करते हैं अब हमने यही कोड उठाया, ठीक है, और हमने कहा भाई यही काम तो छोटे वाले मतलब लेटर्स के लिए करना है. तो मैंने ये देखिए मैंने डाला, और अब मैंने इसे कहा कि जो मेरी एनकोडिंग है वो 97 से शुरू होगी. अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 97 प्लस 26 कितने हो जाएंगे जी? 97 प्लस 26 कितने हो जाएंगे? यस प्लीज कम अप. 123. 123. तो हम 22 तक जाएंगे, और ऑब्वियसली जब 123 वाला नंबर मतलब कि 122 आएगा तो हम उसको छोटा ए बना देंगे, है ना जी? अरे भाई छोटा ए. फाइन. इज इट ओके नाउ? आर यू एबल टू गेट दिस थिंग नाउ? यस सर. Yes, sir. लास्टली देखो अब आप कितना आसान हो गया. लास्टली 48 प्लस 10 58, पर हमें जाना है 57 तक. और यहां फिर से हम कहेंगे कि अगर 57 हुआ तो उसका क्या करना है. अगर 57 हुआ तो क्या करना है? हमें उसे 0 बना देना है, मतलब कि 9 को 0 बना देना है ना? तो अब देखो अब आप हम करके देखते हैं इसे दोबारा. तो आई एग्जीक्यूट, पहले रन करने से पहले विल सेव इट. सेव कर दिया मैंने. नाउ एग्जीक्यूट द कोड नाउ. अब देखो मैं जानबूझ के कुछ मिक्स कंटेंट डालने जा रहा हूं. सुखविंदर सिंह, रोल नंबर, सपोज आप में से किसी का रोल नंबर बताओ अपना. कोई भी माइक ऑन करके बोल सकते हो. 20 समथिंग है. 26 sir. सिर्फ 26. ओके, सो रोल नंबर इज 26 सपोज है. एंड लास्टली आई कोई चीज रहेगी. देखो नंबर भी आ गए, बड़े लेटर भी आ गए, छोटे लेटर भी आ गए. चलो ठीक है, हम एंटर लगाते हैं. सो द मोमेंट आई प्रेस द एंटर की, नाउ यू सी नाउ के कोड भी बदल गया, सेंटेंस भी बदल गया, एंड नोबडी कैन नाउ फिगर इट आउट. अगर मैं आपको आखिरी लाइन दूं तो आप बता पाओगे कि मेरा नाम ही था एक्चुअल में? नो वन, शायद मेरे को तो लगता है कि बता पाएगा. इज इट ओके? सर डिजिट्स Yes, sir. कैसे चेंज हुई? हाँ जी बेटे. सर डिजिट्स जो 26 चेंज हुआ 37 में. हाँ, तो डिजिट्स को भी हमने अगले कैरेक्टर में बदला ना. 2 को 3 बना दिया, 3 को 4 बना दिया, 6 को 7 बना दिया, एंड सो ऑन. ओके सर. है ना? हमने अभी इसको आसान रखा है, ध्यान रखिएगा. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, वैसे मेरा रिसर्च का डोमेन ही यही है, मैं इसी पे रिसर्च कराता हूँ. अगर कोई आप में से बाद में कोई पढ़े और आगे बढ़ना चाहे रिसर्च की तरफ, तो सिक्योरिटी में अगर काम करना चाहें तो ये मैं कराता हूँ. ये तो अभी शुरुआत है, ये एक बच्चों वाला, मतलब कि उसमें बच्चों वाला प्रोग्राम है. क्रिप्टोग्राफी में बच्चों वाला प्रोग्राम है. बट आप इसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर इस डोमेन में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, यू कैन डू दिस थिंग. तो देखिए जरा, अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने चेकिंग करने के लिए लगाया था. एंड नाउ आई राइट इट हियर दैट व्हाट वी हैव डन एक्चुअली. आई कैन राइट नाउ, printf में लगा रहा हूं क्या, entering the machine in encryption mode. ठीक है, समझ गए? लो जी, और फिर हम कहते हैं इसे, एक और लिख लेते हैं सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. वेलकम टू द क्रिप्टोग्राफिक कोड. और अब ये जो कोड था ना मेरा, ये वाला, इसको उठा रहा हूं यहां से और यहां डाल रहा हूं, ताकि ये कोड बाद में आए कि हाँ चलो ठीक है भाई. एंटर द सेंटेंस टू encode is a technical word, so I write hide. ठीक है. Now do you want to have the reverse? Yes, no? यस सर. Yes. Do you want to have the reverse of it? No, reverse of it should be done today itself, or इसको कल के लिए छोड़े, जैसे आपको ठीक लगे.
कल के लिए सर। सर्कल ही करा देना। चलिए ठीक है। सो वी हैव लास्ट गेट सी एच। क्या क्यों लगाया गेट सी एच? सर आंसर देखने के लिए। रिजल्ट देखने के लिए, है ना? यही बोलोगे ना जब आपका Yes, sir. वाइवा होगा तो क्या बोलोगे? Sir, to आपने read the कहना है? text character. हाँ, एक कैरेक्टर रीड के लिए, रुकने के लिए, ताकि हम रिजल्ट देख सकें। एक्चुअली रुकेंगे कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, बट फायदा उठा रहे हैं ये कि हम रिजल्ट देख सकें। एक्चुअली इसका कोई यूज नहीं है गेट सी एच का, हम सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द कोड फॉर टुडे। आई होप you have enjoyed the session. If you have enjoyed the session, please write down in the chat box, chat window. If no, you can write no, it was boring also. It's up to you to write down how you have felt for today's code, so that I can bring up more such codes or not. Yes, no, मुझे पता होना चाहिए ना कि हम जो सीख रहे हैं या कर रहे हैं या कराने की कोशिश कर रहे हैं, सच में उसमें मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ठीक है, we can have some other type of code. Fine. Abhishek says it was interesting. Swati also says interesting. Fine. Thank you very much for all your inputs. Pooja says yes, sir. Okay. Thanks Kavita, Neha, Sachin. Thank you very much. आप लोग जो है वो भी टीचर्स में जान डालते हो, तो इसको ध्यान रखा करो। जब आप कोई भी ऐसा कोई भी इनपुट मिले, अगर आपको अच्छा लगे, सच में यू कन्वे दोस फीलिंग्स ऑफ योर्स इन द चैट बॉक्स सो दैट द टीचर एंजॉयज एंड ही पुट इन more energy to create wonderful code, wonderful classes for all of you, so that you can also learn and become better every day. Thank you very much for joining in. Have a nice day. सर Thank you, आपने उस Harish. प्रोग्राम में सर 48 सर नंबर के लिए यूज किया था। नंबर्स के लिए यूज किया, बिल्कुल Okay. सही।